So last class I introduced you level curves and level and contour curve. है ना? So level curve is what? The set of points in the plane where the function has constant value. That was level curve. If you have some equation fxy is equal to some equation, just recalling level curve. So sum fxy, if given to you, just put it to some constant, then solve it. It will give you the set of points on the plane. है ना? That was your level curve. ऐसे हमने प्रॉब्लम सॉल्व की थी, एग्जाम्पल 3 लिया था आपका, फाइंडिंग द लेवल कर्व ऑफ दिस 100 minus x square minus y square. So I saw that this you can write z, fxy or z. It was a downward paraboloid and the level curve was coming some circles. When you put is equal to 0 or 0 or some numbers, suppose if it was 0, for example, so you got x square plus y square is equal to 10 square. So this was a circle of radius 10. है ना? तो ये आपको एक सर्किल आ रहा था रेडियस 10 का ऑन द प्लेन. तो इट वाज अ लेवल कर्व इन द प्लेन. अगर ये आपके पास 10 रेडियस का x square plus y square is equal to 10 square. In this way you can find a level curve. So it is level curve. Then you have contour curve. Contour curve. Contour curve was the curve in the space. It was a curve in the space when you just take the z, the cut of z is equal to c in the surface. So in the surface, when you get z is equal to c, for example, you have z is equal to, यहाँ पे यह जैसे आपका 10 है वर्टेक्स, z is equal to 10. अगर मैं यहाँ पर कट करूंगा इससे तो प्लेन से, तो z is equal to 10, plane will be what? Here. The plane will cut it here at this point. So this plane will cut it here. So you will be getting a point here. क्योंकि वर्टेक्स है. सपोज z is equal to 5 ले लें यहाँ पे. तो 5 से क्या होगा यहाँ पर at the 5 you will plot a plane. So this plane will cut it here. So you will be getting a circle on the surface. तो ये जो है ये आपका कंटूर कर्व होगा. z इक्वल टू 5 यहाँ पुट करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, तो इट विल बी अ कंटूर कर्व. ओके. So this is the difference between plane curve and contour curve. यहाँ तक क्लियर है? If you have any doubt you can ask. बोलिए भाई. सर जो फंक्शन दिया हुआ है उसके लिए क्या होगा सर कंट्रोल करें? इस फंक्शन के लिए गिवन ये है ना, जो भी z गिवन होगा इस z को आप कट करेंगे यहाँ पे. जब इससे कट करेंगे, अब ये जो सर्किल है ये इंटरसेक्शन होगा इन दोनों पे, यहाँ पुट कर दीजिए जो भी रेडियस आएगी. पुट z इज इक्वल टू दिस. सर जेड गिवन होगा. हाँ z गिवन होगा आपको. इस z को जब आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो इंटरसेक्शन जो आएगा इसका, है ना, वही आपका कर्व कंटूर कर्व होगा. इन दोनों का इंटरसेक्शन बस ये सरफेस पे आए. कंटूर कर्व विल बी ऑन द सरफेस. जी सर सरफेस में और कंटूर कर्व में क्या फर्क होगा? सरफेस में कंटूर कर्व में नहीं, लेवल कर्व और कंटूर कर्व में कहिए. सरफेस तो आपका ये सरफेस गिवन है fxy. ठीक है. यस सर. लेवल कर्व और कंटूर कर्व में डिफरेंस ये होगा, लेवल कर्व जो होगा इट विल बी इन द प्लेन. तो जो पॉइंट आपको जो वैल्यू गिवन होगी, जैसे यहाँ z इज इक्वल टू 100 है, fxy इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने 10 लिया या 0 लिया था. जैसे fxy अगर 0 गिवन है, z इज इक्वल टू 0,
z इज इक्वल टू 0 को मैं यहाँ पुट करूंगा और इसे सॉल्व करूंगा इक्वेशन को। तो अब जो इक्वेशन आई, ये इक्वेशन आपकी कहाँ आई? ये प्लेन में आएगी। तो लेवल कर्व विल बी इन द प्लेन and contour curve will be in the surface. So contour curve is the intersection of z is equal to c and the surface. तो intersection कहाँ आएगा? On the surface, है ना? ये है। यस सर। और लेवल कर्व इज नॉट इंटरसेक्शन। लेवल कर्व में क्या, इस पॉइंट को यहाँ पुट करा हमने और इसको प्लेन में निकाल दिया। तो लेवल कर्व यहाँ पर इंटरसेक्शन नहीं है। लेवल कर्व तो आपको यहाँ पे ये इसका प्लेन पर जो पिक्चर आ रही है वो है। ओके, ये यस सर। डेफिनेशन थी। Level curve is the set of points in the plane, and the contour curve is a curve in the space. In the set of point in a space. Okay, ये major difference है. In the same way, you can define for function of 3 variables. It was for function of 2 variables. Same concept I can define for function of 3 variables. If you have function of 3 variables का मतलब 3 independent variables है ना? डिपेंडेंट X, Y, वेरिएबल्स Z. मैं एक ही ले रहा हूँ। जब वेरिएबल्स की बात करता हूँ, इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। सपोज यू हैव 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, so I will write w is equal to f x y z. This will be your function of 3 variables. Here it was function of 2 variables. 2 variables को I will be writing z is equal to f x y. और वेरिएबल का मतलब होगा, हमेशा ध्यान रखना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। वैसे तो टोटल वेरिएबल्स यहाँ पर 4 हैं, 1 डिपेंडेंट वेरिएबल एंड 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। लेकिन जब हम वी से फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स, इसका मतलब 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ओके, जैसे आपका फंक्शन हो सकता है अब w इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और मे बी w इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इस टाइप से। अब इसको प्लॉट करना इज नॉट feasible, है ना? इसे मैं प्लॉट नहीं कर सकता 4 वेरिएबल्स को, क्योंकि वी हैव ओनली 3 डायमेंशन इन द प्लेन इन दिस R3, है ना? वी कैन विजुअलाइज अप टू 3 ओनली। 4th डायमेंशन को आई कैन नॉट ड्रॉ, बट वी कैन इमेजिन कि इट विल आल्सो अ पैराबोलॉइड इन 4 डायमेंशन। 4 डायमेंशन में कुछ पैराबोलॉइड टाइप की फिगर होगी, बट इसे प्लॉट नहीं कर सकता क्योंकि पेपर पे आई कैन प्लॉट ओनली 3 एक्सेस। 4th एक्सेस को प्लॉट करना इज कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन ये आइडिया रख सकता है हमें, जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई लेकिन सर स्क्वायर। प्लॉट कर सकते हैं हम, वैसे कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन प्लॉट हो सकता है। कंप्यूटर से अगर जनरेट करें तो हो सकता है 4 डायमेंशन दिख जाए, लेकिन 5th कंप्यूटर पे से हाँ सर एक तो फोटो दिखाइए ऐसे। एग्जिस्ट करता है सर 4 डायमेंशन? सब एग्जिस्ट करता है, एवरी डायमेंशन एग्जिस्ट। फिजिक्स में आप पढ़ेंगे रिलेटिव आइंस्टाइन थ्योरी में कि ग्रेविटी एग्जिस्ट ओनली व्हेन यू हैव मोर देन 3 डायमेंशंस। तो मोर देन 3 डायमेंशन के बाद ही ग्रेविटी है, तो इसका मतलब ग्रेविटी है, तो यू आर लिविंग इन द स्पेस वेयर डायमेंशन इज मोर देन 3, है ना? टाइम को अगर आप एक डायमेंशन ले लें, इफ आई एम टेकिंग वन डायमेंशन एज अ टाइम, बिकॉज टाइम इज आल्सो अ वेरिएबल t which is greater than 0. So if you will take time as a dimension, so you can see कि टाइम को मैं अगर प्लॉट करूँ ना करूँ, लेकिन एक डायमेंशन एक वेरिएबल t भी है ना? तो 4 डायमेंशन का बन जाएगा। You can have fx x y t x y z t। जैसे ये है, इट इज अ स्फीयर, इसे क्या कहेंगे? 1 2 3 4, एक स्फेरिकल है ना? बस यहाँ पर 4 वेरिएबल्स है। रेडियस 10 होगा, ये भी कोई बॉल शेप की फिगर बनेगी। ये आपके फंक्शन इस तरीके से अगर मैं फिगर लिख रहा हूँ मैं, तो इट विल बी अ फंक्शन ऑफ 3 अगर हम इंडिपेंडेंट की बात करेंगे तो इससे इधर ले जाऊं तो इट विल बी अ फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स। लेकिन हमें पता है क्योंकि ये 2 पे एक सर्किल होता है, 3 पे स्फीयर होता है, तो ये 4 वेरिएबल्स पे भी इट विल लुक लाइक अ बॉल या स्फीयर, है ना? स्फीयर होगा ये।
So Bala, your syllabus up to 3 variables only, function of 3 variables. So for this all the definitions are same. बस यहाँ पर लेवल कर्व की जगह मैं क्या कहूँगा, लेवल सरफेस कहूँगा मैं, यहाँ कर्व नहीं कहेंगे. इसके लिए आई विल डिफाइन लेवल सरफेस, है ना, क्योंकि यहाँ पर आपके पास सरफेस का कंसेप्ट होगा नहीं होगा भाई. जब आप एफ एक्स वाई जेड को सी पुट करेंगे तो क्या आएगा, सरफेस आएगा. सरफेस आएगा ना, जैसे 3 डायमेंशन होते हैं. अब आई विल पुट दिस इक्वल टू सी, जैसे ये अगर होता, इसको आपने सी के इक्वल पुट करा, फॉर एग्जाम्पल ये मैं एफ एक्स वाई जेड ये ले लेता हूँ, ये ले लूँ अगर w इज इक्वल टू दिस, तो व्हेन फॉर एग्जाम्पल if you have fxyz is equal to 100 minus x square minus y square minus z square, इसको अगर आप c के इक्वल पुट करेंगे, यू नो it will be x square plus y square plus z square is equal to 100 minus c. ये तो फिगर बनेगी. अब ये सरफेस है, जब c 0 होगा तो ये आपका स्फीयर बन जाएगा. c 25 होगा, it will be some sphere of radius under root 75 and so on. तो इसको हम लेवल सरफेस कहेंगे. डेफिनेशन सेम वही होगी जो लेवल कर्व की थी, बस यहाँ पर हो जाएगा द सेट ऑफ पॉइंट्स इन द सरफेस. ओके, तो ये लेवल सरफेस की डेफिनेशन हो जाएगी. तो 3 वेरिएबल्स के लिए कंसेप्ट सिंपली ऐसे ही एक्सटेंड हो जाएंगे जैसे 2 के लिए थे, बस एक्सटेंड होके हमारे पास डेफिनेशन जो बन जाएगी. तो कुछ टर्म्स चेंज हो जाएंगे, कर्व का जगह सरफेस इस्तेमाल करेंगे हम. सिमिलरली आई कैन डिफाइन इंटीरियर पॉइंट्स. कंटूर सरफेस होता है इसमें या नहीं? कंटूर सरफेस आप लिख सकते हैं. कंटूर सरफेस इसमें डेफिनेशन में दिया हुआ कंटूर्स, contour surface if you will define, so in the same way कि if you take the intersection of w, हमने क्या लिया है यहाँ पर, w लिया है. अगर if you take the intersection of w is equal to c with fx y z in the surface itself, है ना, तो उसे आप सॉल्व करके लिख सकते हैं बस, इसे यहाँ पर पुट करके. लेकिन प्लॉट नहीं कर सकते हम इसको, है ना, इससे आई कैन नॉट प्लॉट इन द थ्रू द ग्राफ, इसलिए लेवल सरफेस की डेफिनेशन ही दी है इसमें. कंटूर की बात नहीं करी इन्होंने इसमें. दे आर गिवन फॉर लेवल सरफेस. लेट मी चेक इन द बुक. यस, we see since the graphs of function of 3 variables consisting of point lying in a 4-dimensional space, we cannot sketch them effectively in our 3-dimensional frame of reference. We can see how the function behaves, है ना, क्योंकि इसको हम 3-dimensional frame में प्लॉट नहीं कर सकते, लेकिन हम इसे सॉल्व करके देख सकते हैं हाउ दे बिहेव. इसलिए कंटूर सरफेस की बात उन्होंने नहीं करी है. इज इट क्लियर, है ना? इट इज Yes, sir. not It is easy clear. to draw this in 3-dimensional frame. x y z fx y z, इस पॉइंट को मैं 3-dimensional फ्रेम में नहीं प्लॉट कर सकता. तो सर ये इसका जो सर सेट ऑफ पॉइंट्स होंगे सर वो 4D स्पेस में आएंगे. हाँ, 4 डायमेंशन में आएंगे. वन जैसा कोई पॉइंट रखें आप 1 1 1, ये 4 आ गया, ये 4 डायमेंशन में आएगा ओके सर. ना, इस तरीके से आएगा. तो मैं इसको प्लॉट करना इजी नहीं है, लेकिन उसका बिहेव कैसा होगा ये हम आइडिया लगा सकते हैं बाय कैलकुलेशन, इस तरीके से कि बिहेव कैसा कर रहे होंगे, है ना. Similarly, you can define interior points on a surface. Interior points की definition क्या हुई? A point. Suppose I am noting by x naught, y naught, z naught. 3 points I will take. ये surface की बात कर रहा है, function of 3 variables. A points in a region are in space. अब ये आपका स्पेस में is an interior point
is an interior point of R if क्या होगा बताइए? सपोज 3 डायमेंशन में you have 3 dimensional space OX YZ and यहाँ पे you have some surface 3 dimensional surface है इस तरीके का फिगर आपके बुक में बनी हुई है। बुक से फिगर दिखाता हूँ आपके, एक मिनट। बुक इज विजिबल? Yes, Yes, sir. sir. गुड। Sir, देखिए, look at figure. So here, अच्छा तो ऐसे it is the figure. Look, ये एक 3 डायमेंशनल बॉडी है, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप 3 डायमेंशनल बॉडी में कोई पॉइंट लेंगे तो उस पॉइंट को कवर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कोई प्लेन चूज करना पड़ेगा। प्लेन नहीं, वाई प्लेन? प्लेन्स हमने वहां पे प्लेन को ही लिया था। 2 डायमेंशनल सर आपने कोई क्या लिया था? बाउंड्री अगर एक्स नॉट वाई नॉट आपके पास था तो बाउंड्री स्पेसिफाई करनी Bound- पड़ेगी। बाउंड्री तो स्पेसिफाई सर्कल लिया करेंगे। था, तो सर्कल लिया था बाउंड्री। डिस्क ली थी यार, सर्किल नहीं डिस्क। डिफरेंस है सर्किल और डिस्क में। तो यहाँ स्पेयर लेंगे सर। हाँ, सर यू आर डिस्क में सर हर जगह मटेरियल मैथमेटिक्स होता है। स्टूडेंट। डिस्क और सर्किल बोलने में बहुत सोच समझ के बोले। डिस्क इज डिफरेंट, सर्किल इज डिफरेंट, है ना। हमने डिस्क ली थी वहां पे, याद है? ये रहा। अगर Yes, आपके sir. पास पॉइंट था तो डिस्क थी। ये देखो फिगर, ये अगर एक डिस्क ले हम एक्स नॉट वाई नॉट जिसका सेंटर हो और वो इस तरीके से हो दैट द डिस्क lies entirely in the region R, then we say this point is interior point. Okay, तो डिस्क ली थी आपने, सर्किल नहीं लिया था। तो यहाँ पर क्या लेंगे? स्पेयर। स्फीयर लोगे या सॉलिड बॉल लोगे? सॉलिड लेंगे, सॉलिड लेंगे सर। सॉलिड Solid बॉल sphere बोलो। सॉलिड सर, सॉलिड स्फीयर सर। का मतलब वही हुआ जो आपका 2 डायमेंशन में सर्किल है। स्फीयर मींस यू हैव ओनली बाउंड्रीज, तो स्फीयर नहीं बोलेंगे, ठीक है। डिस्क का एक्सटेंशन क्या हुआ 3 डायमेंशन में? सॉलिड बॉल। क्या बोलेंगे? सॉलिड Solid बॉल। ball. सॉलिड बॉल। सॉलिड बॉल। सॉलिड बॉल का मतलब यही हुआ कि यू हैव ऑल द पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द स्फीयर एंड इनसाइड द स्फीयर, तो वो सॉलिड बॉल कहलाएगी। कीप इन माइंड, जो डिस्क है 2 डायमेंशन में वही सॉलिड बॉल है 3 डायमेंशन में। जो सर्किल है 2 डायमेंशन में वही स्फीयर है 3 डायमेंशन में, एंड सो ऑन। सो आई विल टेक अ सॉलिड बॉल। ये इस तरीके से दिख रहा है, तो हम क्या कहेंगे? अ पॉइंट। तो क्या डेफिनेशन थी हमारी जो लिख रहे थे? हाँ, ये था। सो अ पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट, ये 3 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है। इस पर कोई एक पॉइंट है, सपोज इधर आई एम टेकिंग वन पॉइंट whose coordinate is x naught, y naught, z naught, 3 dimension में, okay. In a region R in space is an interior point of R if it is the center, it is the center इसका of a solid ball, it is a center of a solid ball. एक हम बॉल ड्रा करेंगे यहाँ पे, ये सर्किल सॉलिड बॉल है, ध्यान रखना 3 डायमेंशन में it's a ball. If it is a center of solid ball that का मतलब सॉलिड बॉल that lies entirely in R. ओके, कब कहेंगे इंटीरियर पॉइंट को? कि if you are able to draw a solid ball
taking center x naught, y naught, z naught such that the complete ball lies inside R. ये आपका R है. अगर बॉल R के अंदर लाई कर रही है तो ये आपका पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होगा. अब ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, नियरेस्ट हो सकता है, यहाँ हो सकता है, लेकिन बाउंड्री पे नहीं होगा, क्योंकि बाउंड्री पे जैसे ही आएगा, अब आप कितनी स्मॉलेस्ट रेडियस की सॉलिड बॉल ड्रॉ कर दे, ये एंटायरली R नहीं आएगी, है ना. लेकिन बाउंड्री के अलावा अगर यहाँ कहीं पर है नियरेस्ट, यू कैन ऑलवेज प्लॉट अ solid ball of smallest radius such that it is lying entirely in R. Is it clear? यस सर. सर ये जो सॉलिड sir. बॉल है हम किसी भी साइज की ले सकते हैं ना? हाँ, साइज तो आपके हाथ में है, तभी तो इंटीरियर पॉइंट बनेगा. ओके, तो ये पॉइंट आपका कितना ही नियरेस्ट हो जाए इसके, अगर बाउंड्री के अंदर है तो आप हमेशा एक स्मॉल रेडियस की सॉलिड बॉल ड्रॉ कर सकते हैं. हमें सिर्फ एक बॉल चाहिए, डेट लाइज इंटायरली. अगर एक भी बॉल ऐसी मिल गई कंप्लीट अंदर लाई कर रही है तो वो आ जाएगा. इनफैक्ट एक मिल गई तो आपको इनफाइनाइट मिल सकती है. इफ यू हैव अ सॉलिड बॉल तो यू कैन गेट इनफाइनाइट सॉलिड बॉल्स, क्योंकि किसी भी नंबर से छोटे कितने नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है कि नहीं. यस सर. यस हाँ, सर. तो दिस इज द, तो व्हाट इज द, सर दिस इसके इज बाउंड्री के बारे में क्या बताएं सर? बाउंड्री के बारे में वही बताएंगे. वहां पे क्या बताया था बाउंड्री के बारे में, पहले बताओ जरा. 2 डायमेंशन में व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ बाउंड्री. सर डिस्क का पूरा हिस्सा इसके अंदर नहीं आता था, थोड़ा सा बाहर होता था, थोड़ा सा अंदर होता था. सेम थिंग हियर, कि if you have a point then you are unable to get a ball. Yeah, you can say if you have a point then every solid ball has some interior points, some exterior points, then the point is called interior boundary point. आपका कोई पॉइंट हो तो आप कोई सी भी सॉलिड बॉल ले लें, हर बॉल के अंदर क्या हो, it has some interior points, some exterior points, then the point is called boundary points. एक भी बॉल अगर आपको ऐसी मिल गई कि जिसके अंदर सिर्फ अंदर के पॉइंट्स हैं तो वो हमेशा इंटीरियर पॉइंट होगा, है ना. ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ एवरी सॉलिड बॉल, अगर आपने बाउंड्री पॉइंट लिया, बाउंड्री पॉइंट, तो बस क्या वर्ड यूज होगा, every point, every solid ball, if every solid ball, अब सॉलिड बॉल है तो इसका वो सेंटर्ड होगा. सेंटर क्या लेंगे हम, सेंटर्ड एट उसी पॉइंट जिस पॉइंट को चेक करना है, x naught, y naught, z naught. If every solid ball centered at x naught, y naught, z naught contains some interior points and एक्सटीरियर पॉइंट्स. exterior points. अब सम का मतलब ये नहीं है कि कुछ कुछ होंगे, सम का मतलब इनफाइनाइट होंगे. आप कहते हैं सम इंटीरियर पॉइंट्स एंड सम एक्सटीरियर पॉइंट्स, क्योंकि पॉइंट्स तो इनफाइनाइट होते हैं. अगर सम आ गए तो इसका मतलब ही ये है कि वो इनफाइनाइट होंगे एक्चुअली. सम इंटीरियर पॉइंट्स, सम एक्सटीरियर पॉइंट्स. एवरी, यहाँ पर एवरी वर्ड इंपॉर्टेंट है, बताइए. ठीक, एक्सटीरियर पॉइंट क्या हो गया, एक्सटीरियर पॉइंट आपका हो जाएगा. एक्सटीरियर पॉइंट डेफिनेशन क्या हो जाएगी, पॉइंट इन अ रीजन इज एक्सटीरियर पॉइंट if it is a center of a solid ball that lies entirely outside R. इनकी जगह आउटसाइड कर देंगे तो वो आपका एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा, रीजन के बाहर का. ओपन कब होगा, अ रीजन इज ओपन. ओपन की डेफिनेशन क्या थी, अ रीजन इज ओपन. बाउंडेड की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना. 2 कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए थे, ओपन एंड बाउंडेड. यहाँ ओपन कह रहे हैं. ओपन कब था, इफ इट कंटेन्स, क्या रखता था, सर जब बाउंड्री ना हो तब ओपन था. हाँ, यानी कि क्या हो, सिर्फ इंटीरियर पॉइंट्स हो. अ रीजन इज ओपन इफ इट कंटेन्स ओनली इंटीरियर पॉइंट्स. ये तो कहेंगे आप, बाउंड्री ना हो मतलब इट कंटेन्स ओनली इंटीरियर पॉइंट्स, सिर्फ इंटीरियर पॉइंट्स हो.
यानी कि बाउंड्री की बात ही नहीं कर रहे हम। जैसे आपका मैं विदाउट सरफेस एक यूनिट स्फीयर ड्रॉ करते हैं, अगर हम जैसे वहाँ यूनिट डिस्क लिया था, तो आई एम डिनोटिंग अ यूनिट स्फीयर। इट इज अ स्फीयर हुज सेंटर इज ओरिजिन सपोज, ठीक। तो यहाँ पर सिर्फ इंटीरियर है, आई एम एक्सक्लूडिंग दिस बाउंड्री। इसको अगर आप लिखेंगे, यू विल बी राइटिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर स्ट्रिक्टली लेस देन 1, करेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स x y z such that x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लेस देन 1। तो ये आपके पास क्या है, ओपन है क्लोज्ड है? ओपन सर। ओपन है, क्योंकि बाउंड्री नहीं है, देखो लेस देन है, सो इट इज योर ओपन। अगर मैं बाउंड्री इंट्रोड्यूस कर दूंगा यहाँ पर, इफ आई विल टेक बाउंड्री लेस देन इक्वल टू 1 कर देंगे, तो इट विल बिकम क्लोज्ड, है ना, बिकॉज देन इट विल हैव बाउंड्री आल्सो। बताइए। यस सर। तो एग्जांपल्स क्या हो गए, ओपन सेट्स, एग्जांपल ऑफ ओपन सेट्स इन स्पेस, ओपन हाफ स्पेसेस। और आपका ओपन हाफ स्पेस मतलब क्या हो गया, जैसे मैं z ग्रेटर देन 0 ले लूं, इट इज योर ओपन। ओपन ओपन सेट्स की अगर हम बात करें इन 3D, z ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होगा, यू हैव ओनली अपर पार्ट, है ना, ये z पॉजिटिव है, तो ये ओपन है या क्लोज्ड है? सर ओपन है। ओपन ओपन है। है सर। या पूरा मैं स्पेस, पूरा 3D स्पेस ले लूं, अगर ये ओपन है, कंप्लीट ओपन है 3D, सर। तो ये भी ओपन है। ओपन है सर। यस सर। या लाइन ले ले, लाइन इन 3D, लाइन इन 3D, 3 डायमेंशन में भी तो आप लाइन प्लॉट कर सकते हैं एक, ये भी ओपन हो गई, है ना। 3 डायमेंशन क्वेश्चन लिख लेंगे, x माइनस x1 अपॉन L1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन M1, M इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन M। सो लाइन इन 3D इज ओपन। और आपके प्लेन्स ले लें आप, यहाँ पर कोई मैं प्लेन ले लूं, प्लेन ओपन होता है, कहीं तक इनफाइनाइट तक जा रहा है ना। नहीं, प्लेन नहीं होगा, क्योंकि प्लेन तो क्लोज है, उसमें आप बाउंड्री लगाएंगे। और लाइन भी आपके पास, लाइन ओपन नहीं है, कि लाइन के क्वेश्चन जब आप प्लेन ओपन लिखेंगे तो कैसे होगा बाउंड्री सर? लेंगे ना, लाइन में बाउंड्री लेंगे। रे लेंगे, रे ओपन है सर। हाँ, नहीं लाइन ओपन नहीं, लाइन ओपन क्यों नहीं है, लाइन के क्वेश्चन में इक्वालिटी आती है, तो आपके पॉइंट्स ऑन द लाइन आएंगे, ऑन द लाइन, तो लाइन इज इट सेल्फ अ बाउंड्री, है ना। तो लाइन इज क्लोज्ड, प्लेन इज क्लोज्ड। रे भी क्लोज, रे भी ओपन नहीं है, क्योंकि रे ये सब बाउंड्रीज है ना, जिसमें बाउंड्री नहीं है वो आपके पास ओपन होता है। रे भी तो लाइन के पार्ट है। हाँ, लाइन जो है आपकी अनबाउंडेड है, बाउंडेड के लिए यहाँ पर सेम कंसेप्ट होगा। बाउंडेड के लिए क्या होगा, वहां पर तो स्मॉल रेडियस तक आपका, इफ यू कैन प्लॉट सर्किल ऑफ रेडियस विच कवर्स, अब यहाँ 3 डायमेंशन में है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं इफ यू कैन प्लॉट अ स्फीयर। sphere of some radius which is covering the whole line, तो यहाँ पे आपको 3 डायमेंशन मिलेगा नहीं कोई इतना बड़ा स्फीयर। तो ये लाइन जो है आपकी, ये अनबाउंडेड है, प्लेन भी अनबाउंडेड है, और ये क्लोज भी है ना। क्लोज क्यों है, प्लेन की क्वेश्चन क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो ये तो खुद ही एक, इज इट सेल्फ अ बाउंड्री, सारे पॉइंट्स प्लेन पे लाई करेंगे। ओके। या क्लोज हाफ स्पेस, अब ये z ग्रेटर देन 0 था तो ये ओपन था, लेकिन अगर मैं z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लूंगा, अब इसको हम कहेंगे दिस इज क्लोज सेट, दिस इज क्लोज्ड सेट, क्योंकि यहाँ पे बाउंड्री इंक्लूड हो गई, है ना। क्लोज सेट है लेकिन अनबाउंडेड है अभी ये, बट अनबाउंडेड, क्योंकि z एक्सेस आपने इंक्लूड कर लिया इसमें। चलो z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में ये z एक्सेस इंक्लूड है,
ठीक है, जैसे z एक्सिस इंक्लूड हो गया तो ये आपके पास क्लोज्ड हो गया, लेकिन अनबाउंडेड है। तो सेम कंसेप्ट्स आर देयर जैसे 2 डायमेंशन में थे। इज इट क्लियर? So you can find this. Then there is exercise है इसमें, exercise 14.1. Your chapter is 14, so exercise है 14.1. इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपकी जो करनी है, जैसे 19 प्रॉब्लम थी। It is page number 753. Find a function's domain, range. Find the function's domain, range, and describe the level curves. fxy is equal to 4x square plus 9y square. तो सिंपल है, तो आपके पास 4x square plus 9y square है। डोमेन क्या है इसका बताइए, व्हाट इज डोमेन? डोमेन क्या है, व्हाट इज डोमेन? वेयर इट इज डिफाइंड all real, sir. है, all xy plane है ना। फॉर एनी xy वैल्यू इट इज ऑलवेज डिफाइंड, कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है। रेंज, व्हाट इज रेंज? Non-negative. It will be always 0 to infinity, sir. 0 to infinity, sir. ये लिख सकते हैं ना, ऐसे भी लिख सकते हो कि z ग्रेटर देन Yes, 0, sir. या ये भी लिख सकते हो। एक ही बात है कि z, अगर z लिख दूं तो हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 वैल्यू रहेगी इसकी। अब बात करते हैं, इसके हमें लेवल कर्व्स निकालने हैं। तो लेवल कर्व्स के लिए आपको अगर वैल्यू नहीं गिवन है तो यू कैन पुट दिस fxy इज इक्वल टू c फॉर लेवल कर्व। इसे हम c के ऊपर पुट करेंगे तो यू विल बी गेटिंग 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू c, और इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर अपॉन व्हाट, c अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर अपॉन c अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ये किसकी इक्वेशन है? व्हाट इज दिस? सर एलिप्स की, एलिप्स की है। एलिप्स की। तो इसके जो लेवल कर्व है इसका एलिप्स विद सेंटर एट 0 0, सेंटर एट 0 0 है ना। मेजर एक्सिस इज, इसकी मेजर एक्सिस क्या होगी आपके पास? c/4, ये मेजर हो गई X-axis, sir. है ना। x axis. हाँ, मेजर एक्सिस इज x एक्सिस एंड माइनर एक्सिस इज y एक्सिस। तो हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करना था एक्चुअली कि व्हाट इज द लेवल कर्व। यहाँ पे डिस्क्राइब था, डिस्क्राइब द लेवल कर्व है ना। अब आपके पास c की वैल्यू गिवन हो, आप चेक कर सकते हो। अगर मैं c 0 ले लूंगा यहाँ पे तो इट विल बिकम 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। वो क्या हो जाएगा आपका? ओरिजिन बन जाएगा। ऐसे ही 23rd प्रॉब्लम है, इसका भी डोमेन, रेंज एंड लेवल कर्व निकालना है। fxy इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बताइए इसका डोमेन, व्हाट इज डोमेन? अंडर रूट में और डिनोमिनेटर में क्या होता है? अंडर रूट में ऑल एक्स वाई सच दैट ये हमेशा क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना नॉन चाहिए। नेगेटिव। लेकिन Positive, फ्रैक्शन में भी है non-negative. तो 0 भी नहीं हो सकता है ना। Yeah. क्या होना चाहिए? एक्स स्क्वायर, ये होना चाहिए 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 Greater है ना। than 0. इक्वल टू नहीं लूंगा मैं फ्रैक्शन में, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इधर ले जाएं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस less than 15. लेस देन 16, स्ट्रिक्टली लेस देन 16। रेंज, अब देखो रेंज ध्यान से। सो बिकॉज इट इज लेस देन 0 हमें मालूम है, अंडर रूट के अंदर है तो हमेशा पॉजिटिव ही आना है। अब दिस थिंग शुड बी ऑलवेज लेस देन 16 है ना, ये हमेशा
लेस देन 16 है, तो हम इसकी रेंज देखते हैं। तो आई विल सी व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम कितना हो सकता है। आई वांट टू फाइंड रेंज। तो एक्स स्क्वायर सर प्लस वाई 0 0 जीरो 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 Zero. जीरो हो सकता है। जीरो कैसे हो जाएगा भाई? जीरो जब होगा जब आपके सर पास जीरो इंक्लूड नहीं होगा सर इसमें। जीरो तो इंक्लूड ही नहीं होगा, है ना? नहीं सर, सही। आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू पूछी थी ना। नहीं, आई वांट टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। हाँ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सही बात कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जीरो हो सकता है। इसको ये आपके पास ये है, देखो 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आई विल सी, ये ऐसे ऐसे लिख दें। अब आप ये देखें कि आई विल फाइंड कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस होल फंक्शन, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमेशा लेस देन 16 है।